Hello everyone, I am Monica and welcome to Expronica, your cozy corner for a mindful reflection, heartfelt stories, and delightful recommendations. Oh my god, I am saying this sentence after such a long gap. Almost after a month, I missed my whole schedule for a 1 month. But anyway, I am back here again. And we are at the end of a March, but we will start with the monthly magic video of Feb. If you have watched my previous video for a month of January, you will understand that this is monthly magic video is a series which I have started where I will make one video for each month where I will try to review my whole month in terms of my activities, in terms of my targets. And to judge my month, I have decided 5 parameters, and based on those 5 parameters I am sharing my month with you in this video. So I told you I have mentioned this in my previous videos lot many times that at the end of a calendar year I kind of go into the zone of introspection, and I really harshly criticize myself. Sometimes I really harshly introspect myself. I crib a lot for lot many things, that I miss this, I miss that. And to keep track on my activities, keep track on my targets, I have decided that if I am making YouTube videos, let's make a one video for each month where I will review that month, which will help me to keep myself on my track, which will help me to keep myself more aware about my goals. And so that's it, we are here for a month of February. So let's move to the first key point to judge my month. So the first key highlight of this month is movies or the shows I watched in this month. So in month of Feb, I watched 2 movies. One was Dhoom Dham, which is released on a Netflix. Pratik Gandhi and Yami Gautam is there in the movie. And second one, obviously, Chhaava. So both the movies released on 14th of Feb, I guess. I watched Dhoom Dham on 14th of Feb, and I watched Chhaava next day on 15th of Feb morning show. So if I talk about Dhoom Dham, I really like that movie a lot. It has unique story, and वैसे भी जब प्रतीक गांधी स्क्रीन पे होते हैं ना, तो स्टोरी डजेंट मैटर, द डायलॉग डजेंट मैटर, मुझे उनको सिर्फ देखना पसंद है. देर आर फ्यू एक्टर्स जिनको मुझे सिर्फ स्क्रीन पे देखना पसंद है. लाइक इट डजेंट मैटर कि स्टोरी क्या है, डायलॉग क्या है, स्क्रीन प्ले क्या है, इट डजेंट मैटर. प्रतीक गांधी इज़ वन ऑफ देम. द अदर एक्टर आई वुड टेल यू विद्या बालन, देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड देन देर इज़ अ मानव कौल. तो मुझे उनको स्क्रीन पे देखना ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये मूवी देखी. जिस दिन आई उसी दिन शायद मैंने रात को देखी थी. एंड दिस मूवी इज़ अमेजिंग. लेकिन इस मूवी में वो एक कॉमेडी का अंडरटोन है विच कीप्स अस मोर एंगेज्ड विद द मूवी एंड एंगेज्ड विद द कैरेक्टर्स इन द मूवी. And second movie is Chhaava, but I'm not going to talk about this movie in this video because there will be a separate video on Chhaava. And I know that there on the internet there are so many videos and so many reels about movie Chhaava, and about the life of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. But the video I am making is completely different video. You will get completely different perspective about all the this entire topic. So I will not talk much about this in this video, but I will definitely say that if you haven't watched this movie till today, please watch it, and please watch it in the theater, not on mobile. Okay. Second key point is books I read in this month. So as I told you that I watched movie Chhaava. सो जब छावा का ट्रेलर आया तो आई वॉज श्योर कि मैं ये मूवी देखने के लिए जा रही हूँ इन थिएटर. एंड मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी देखने के बाद मैं कैसे जज करूँगी कि ये मूवी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मुझे तो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था. सो ये छावा जो नॉवेल है ये मेरे पास 2 साल से है. तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो पढ़ लेते हैं बिफोर गोइंग टू मूवी, तो शायद हम थोड़ा जज कर सकेंगे. एंड तब तक ना मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि छावा मूवी जो है वो ये सी छावा कादम्बरी पे बेस्ड है. तो मूवी रिलीज़ होने से पहले 1 हफ्ता पहले आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक. 1 हफ्ते में मैंने कुछ 100 पेजेस पढ़ लिए. उसके बाद मैंने मूवी देखी, एंड मूवी देखने के बाद के 1 हफ्ते में मैंने ये पूरी बुक पढ़ डाली. दिस बुक इज़ मोर देन 800 पेजेस बुक. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था.
2 साल से मेरे पास है, मैंने खोलने की और पढ़ने की कोशिश भी नहीं की थी। एंड अब उस मूवी ने मुझे वो इंस्पायर किया पढ़ने के लिए, एंड अल्टीमेटली मैंने ये बुक कंप्लीट पढ़ ली। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज 800 पेजेस की किताब बहुत सालों बाद मैंने पढ़ के ख़त्म की है। पहले मैं बहुत पढ़ती थी, पहले 800 पेजेस बुक वाज लाइक 3-4 डेज़ का टास्क था मेरे लिए। लेकिन अब मैंने शायद 2 हफ्ते लिए, लेकिन मैंने कंप्लीट की। एंड अल्टीमेटली मुझे संभाजी महाराज के लाइफ के बारे में जो जानकारी मिली, all these things I will talk about it in the separate video, but it was a great achievement for me. And I'm really proud that, because of this, because of I'm making these monthly magic videos, and because of I am keeping track of all the current affairs, it kind of pushed me to finally finish this book. And that's what I want from all this video making thing. If I could help you, that will be the cherry on the cake. But the first thing will be, I am benefiting myself a lot through this process, and that's what I love about this. Because just doing this, I am growing myself, and just watching the video, you are also going to get so many hints about the self growth if you watch from that perspective. Okay, so our perspective also matters a lot. So let's move to the third point. Third point is self growth slash routine check. So यहाँ पे I will more focus on the self growth part. तो I will share with you one incident. फेब के एंड में महाशिवरात्रि थी, एंड मुझे महाशिवरात्रि आउट ऑफ लिविंग के बेंगलोर आश्रम में अटेंड करनी थी बहुत सालों से। वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है महाशिवरात्रि का। वैसे तो घर में हम फास्ट रखते हैं दिन भर एंड रात को सो जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का रिलेवेंस ही तो रात में है। वो रात में जो आप साधना करते हो, रात में जो आप ध्यान करते हो, उसमें पूरा उसका एसेंस है। एंड वो मुझसे घर पे तो नहीं हो पा रहा था। एंड मुझे बहुत सालों से ये इच्छा थी कि मैं बेंगलोर आश्रम में जाऊँ आउट ऑफ लिविंग के, एंड वहाँ पे वो सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करूँ। तो मैंने इस साल भी बोल दिया मेरे हस्बैंड को कि मुझे जाना है। ही वॉज लाइक कि ओके जाएंगे हम, तू बुकिंग कर ले, ये वो कर ले, प्लान कर ले अकॉर्डिंग टू यू, एंड आई एम रेडी। लेकिन मुझसे ना वो प्लानिंग नहीं हो रही थी। द मोमेंट आई स्टार्ट प्लानिंग, मेरे दिमाग में इतना ही ख्याल आते थे, लाइक माई लॉजिकल माइंड वॉज ओवर पावरिंग मी कि देख तू एक दिन के लिए जाएगी, फिर तू इतना खर्चा करेगी, फिर इतना एफर्ट करेंगी, रात को सो भी नहीं पाएंगी, फिर अगर एक दिन के लिए जा रही है तो 4 दिन का प्लान कर, आगे थोड़ा कहीं पे घूमने के लिए जाया। इस तरह से इतने सारे थॉट्स आ रहे थे, एंड आई वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। क्योंकि अगर आगे क्योंकि अगर ये ट्रिप एक्सटेंड करनी है तो और ज़्यादा पैसे की और ज़्यादा टाइम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो हो नहीं रही थी। तो इसकी वजह से वो पूरा प्लान ही कैंसिल हो रहा था। और मुझे विश क्या थी पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस बोलूँगी कि आई वॉन्ट टू गो, और मेरे आजू बाजू वाले लोग ना कुछ प्लान बनाएंगे, सब कुछ प्लान करेंगे, और वो बोलेंगे मोनिका तू भी आ जा, हमारे साथ एक सीट खाली है। तो मुझे वो रेडीमेड प्लान चाहिए था। और जब मैं खुद प्लान करने के लिए बैठती थी ना, तो मुझे वो क्या बोलते हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस पैरालिसिस, वो हो जाता था। उसकी वजह से इतने सालों से ना मैंने महाशिवरात्रि मिस की थी। तो इस साल भी ऐसे ही हो रहा था। तो जस्ट 2 दिन पहले रात को जब हम सोने जा रहे थे, मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि इस साल भी हम मिस करेंगे, इस साल भी हम नहीं जा पाएंगे, हमने कुछ बुकिंग नहीं किया, कुछ प्लान नहीं किया। तो बोला ऐसा क्यों, लेट्स बुक राइट नाउ। तो हमने ट्रैवल से जाने का फाइनल किया, और कुछ ऐप्स डाउनलोड किए, और ऐप से ट्रैवल बुक की, पेमेंट किया। और नेक्स्ट डे से मैंने कुछ थोड़ा बहुत पैकिंग की। जब तक हम ट्रैवल में बैठ नहीं रहे थे ना, तब तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम एक्चुअल में जा रहे हैं। बट फाइनली वी वेंट देयर, वी सेलिब्रेटेड महाशिवरात्रि, एंड इट वॉज फिनोमिनल एक्सपीरियंस। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी उसमें, लेकिन दैट पोस्ट इज़ इन मराठी, मैं शायद उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके डालूँगी। इट वॉज़ फिनोमिनल एक्सपीरियंस। और मैंने बहुत सालों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी अपने बर्थडे पे कि हाउ टू जज आवर लाइफ। हम ज़्यादातर मतलब लाइफ को इस तरह से जज करते हैं कि फेलियर है या सक्सेसफुल है, रिच है या पुअर है, इस आदमी की लाइफ कैसी है। फॉर मी मनी इज़ नॉट
parameter to judge someone's life, because money doesn't excite me. Money does matter a lot, but money does not excite me. तो वो बात तो बाजू में है. देन अगेन व्हाट, हाउ कैन वी जज समवंस लाइफ? स्टेटस. तो कितने लोगों को अच्छे स्टेटस पे जाते हुए देखा है और फिर वहाँ से गिरते हुए भी देखा है. एंड दैट concept of status and reputation is so feeble that you cannot rely on that to judge your life. तो मैंने ही खुद से उसका आंसर फाइंड आउट किया था कि जीते वक्त जितनी भी बार ऐसा लगे कि दिस मोमेंट कैन बी द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ये 1 घंटा, ये 1 दिन अगर मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मुझे चलेगा, मैं हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हूँ. ऐसे जब मोमेंट्स लाइफ में आएंगे, वो जितनी बार भी आएंगे ना, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ मैं. ये मैंने खुद के लिए वो पैरामीटर ढूंढ निकाला है. तो हर बार हर साल कुछ ना कुछ होता है कि आई फील दैट ब्लिस और एक्सटेसी, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी ये एंड हो गया ना लाइफ का, चलेगा, आई एम हैप्पी टू गो. तो महाशिवरात्रि का वो जो पूरा सेलिब्रेशन था, वो पूरा जॉय था. मैंने ड्यूरिंग ऑल दैट टाइम मैंने यही फील किया कि अभी तक के लाइफ का ये परमोच्च बिंदु है. इट इज़ अ सुप्रीम पॉइंट फॉर मी टू अभी तक के लाइफ का. ऐसे बहुत ज़्यादा हायर एंड हायर पॉइंट्स मेरे लाइफ में आते रहे. आई विश फॉर दैट, बट दिस इज़ हाउ आई जज माई लाइफ. सो ये एक्सपीरियंस लेना, इस एक्सपीरियंस के लिए खुद को वो प्रोसेस में छोड़ना और लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा बाजू में रखना वॉज द ग्रोथ पॉइंट फॉर मी. क्योंकि हम सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको भी यही बताना चाहूँगी कि लॉजिकली सोचना, कैलकुलेटेड वे में काम करना अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कुछ लाइफ में थोड़ी बहुत स्पॉन्टेनिटी भी होनी चाहिए. थोड़ी बहुत इन द स्पर ऑफ अ मोमेंट कुछ एक्शन हो गया, वो भी होना चाहिए. अदरवाइज वी लूज़ अ मैजिक ऑफ लाइफ. लाइफ इज़ फुल ऑफ मैजिकल मोमेंट्स, लेकिन वो लॉजिकल माइंड और वो कैलकुलेटेड माइंड इतना सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है हर बार कि हम वो ना एक्साइटमेंट फील नहीं कर पाते लाइफ में. सो दैट्स व्हाट वी शुड बैलेंस लिटिल बिट, लाइक लॉजिकल, being logical and being spontaneous, being calculated and being spontaneous. We should balance that out and life will be very happy. Fourth point is realization or the lessons learned. तो इस महीने में मुझे ये लेसन मिला कि जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मैं विश करती हूँ, उसके लिए जो एक्शंस लेने पड़ते हैं, व्हेन आई स्टार्ट टू टेक दैट एक्शन, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं. या फिर जैसे मैंने अभी पिछले पॉइंट में भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचती हूँ और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड वे में सोचती हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दैट कितनी भी मेरी ऐसी विशेष है जो मैं फुलफ़िल नहीं करती हूँ, उनको छोड़ देती हूँ. ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने कहा कि पहले वाले पॉइंट में भी कि कैलकुलेटेड वे ऑफ लाइफ एंड सम स्पॉन्टेनिटी इन द लाइफ, बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. एंड वो लाइफ को अपना मैजिक दिखाने का थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए. तो मेरे लिए सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये था कि सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, सब कुछ कैलकुलेटेड वे में हो, ज़रूरी नहीं है. हम एन्जॉय करते हैं स्पॉन्टेनिटी, हम एन्जॉय करते हैं एक्साइटमेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्स होना इज़ नॉट गुड फॉर फन. सो थोड़ा बहुत रिस्क, थोड़ा बहुत स्पॉन्टेनिटी, थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड वे ऑफ लिविंग, इन सब का बैलेंस बना के रखना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड इन दिस मंथ एंड आई एम गोइंग टू आई एम अप्लाइंग दिस ऑलरेडी in my life. Fifth point is biggest win of the month. So if I talk about the biggest win of the month, or rather this win is not only for this month but for my life, is that I attended Mahashivratri in presence of Sri Sri Ravi Shankar ji in International Art of Living Ashram, Bangalore. And at that time, in that place, there were also a original vigraha of Somnath Shivling, and I could
सी दैट मुझे उनका दर्शन लेने का मौका मिला और उनके प्रेजेंस में रुद्र होमा रुद्र पूजा करने का मौका मिला और पूरी रात शिव के भजन चल रहे थे, पूरी रात सेलिब्रेशन हो रहा था, मैं भी पूरी रात जगी हुई थी एंड आई एन्जॉयड अ लॉट एंड दैट्स द बिगेस्ट विन एंड दैट इज़ द बिगेस्ट विन नॉट ओनली फॉर दिस मंथ बट फॉर माई लाइफ। अभी तक की जो लाइफ है उसका ये वो जो रात थी ना वो एक परमोच्च बिंदु था एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस। एंड सेकेंड विन फॉर दिस मंथ इज़ क्योंकि मैंने छावा का ट्रेलर देखा, उसके बाद मैंने छावा नॉवेल पढ़ने का सोचा और मैंने फाइनली बुक पढ़ के ख़त्म की एंड मुझे फाइनली संभाजी महाराज के लाइफ के बारे में बहुत कुछ या फिर थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला, मैं जान पाई एंड दैट्स द बिगेस्ट विन फॉर मी। एंड इसके बारे में मैं फिर अगेन आई विल से दैट मैं दूसरे वीडियो में ज़्यादा बात करूँगी, लेकिन इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि इफ़ आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब अ मंथ ऑफ अ फेब देन इट विल बी अ शौर्य एंड भक्ति, शिव एंड शंभो। And if I want to summarize this month in 2 words, then it will be the Shiva and Shambho, because you know Sambhaji Maharaj and the Shiva, the महादेव, देवों के देव महादेव, ये दोनों ही चल रहा था बस मेरे मन में पूरे महीने एंड इट वॉज अलग ही फीलिंग था, मैं अलग ही जोन में जी रही थी पूरे महीने के लिए। And because of that also I was not able to push myself to make videos because I did not wanted to come out of that zone, and because of that I missed so many schedules, but that's okay। ये पूरा एक्सपीरियंस मुझे बहुत कुछ सिखा के गया है। That's it for this video। If you like this video, please share it with your friends, family, press the like button, subscribe to the channel, and if you have any feedback or if you want to express your opinion, you can comment down in the comment section। Thank you so much and we will meet very soon। Bye।